Hello everybody, myself Mayank. Now in this lecture I will discuss with you factors which affect SN2 mechanism. Factors affecting SN2 mechanism. The first thing is nature of alkyl halide. Nature of alkyl halide. Now you see in SN2 mechanism, you know that there takes place backside attack of a stronger nucleophile which displaces leaving group. Just like this. This is R double dash, this is R dash, this is incoming nucleophile, it attacks, there is a transition state, and ultimately you obtain alcohol. So as far as mechanism of SN2 reaction is concerned, bimolecular nucleophilic substitution, in which rate of reaction not only depends on concentration of alkyl halide but also on the concentration of nucleophile in the form of hydroxide ion. SN2, you know that it is an example of concerted mechanism, one-step mechanism. The incoming nucleophile, the stronger nucleophile attacks from the backside and you obtain a product which is inverted. By inversion, I mean to say the substituent which is outside the plane of blackboard towards you, that is R double dash. Now, after the formation of product, it is again outside the plane of blackboard but away from you. Here, the case with R dash in the alkyl halide, R dash is positioned outside the plane of blackboard away from you, but now here it is outside the plane of blackboard towards you. So by inversion of configuration, I mean to say the substituent which lies outside the plane of blackboard towards you initially, now it is positioned at outside the plane of blackboard away from you, and vice versa case for the R dash. तो जो पहली महत्वपूर्ण बात है SN2 मैकेनिज्म के लिए वो है कंसर्टेड मैकेनिज्म, वन स्टेप मैकेनिज्म. दूसरा है बैक साइड अटैक, कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से अटैक नहीं करेगा, वो बैक साइड से अटैक करेगा. और इंटरमीडिएट क्या होगी? एक ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट क्या है? ट्रांजिशन स्टेट इज एन इमेजिनरी स्टेट विच कैन नॉट बी करेक्टराइज्ड. ट्रांजिशन स्टेट इज एन इमेजिनरी. इंटरमीडिएट बनता, ठीक है. इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में क्या अंतर है? ट्रांजिशन स्टेट इज सो अनस्टेबल दैट वी कैन नॉट कैरेक्टराइज द ट्रांजिशन स्टेट बाय एप्लीकेशन ऑफ suitable spectroscopic methods. But intermediate is quite stable. It can be characterized with the help of application of spectroscopic techniques. But here in this case, SN2, you have a presence of transition state in which bond breaking is simultaneous with the bond making. What does it mean? That carbon bromine bond is in the course of breakdown and carbon nucleophile bond is in the process of making. So both the processes are simultaneous, and we say that it is an example of concerted mechanism, that is one step mechanism. Then
SN2 always proceeds with inversion of configuration, and I told you by inversion I mean to say that the substituent which is outside the plane of blackboard towards you after the formation of product would have position outside the plane of blackboard away from you, and vice versa case for R dash. अब देखिए what is happening, that this carbon atom is sp3 hybridized. This carbon atom is sp3 hybridized. It is forming 4 sigma bonds. While here in this case, in order to attain minimum repulsions between different substituents, carbon atom in the transition state assumes sp2 hybridization. Why? It is forming 3 single bonds only. कि आपका जब कंसर्टेड मैकेनिज्म हो रहा है, SN2 हो रहा है, आपके पास इनिशियली कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, वो कार्बन एटम 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ये कार्बन sp3 से sp2 में जाएगा. क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू sp3. क्यों? क्योंकि sp2 में जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे कार्बन के अबाउट वो 120 डिग्री के एंगल पे होंगे, जबकि sp3 में वो 109 डिग्री 28 मिनट में होंगे. जितना एंगल ज्यादा उतना इंटर सब्स्टिट्यूएंट रिपल्शंस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. अब यहां पे क्या हुआ? ट्रांजिशन स्टेट में sp2 हाइब्रिडाइज हो गया. ठीक है, दिस हाइड्रोजन, दिस आर डैश, ये प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड में है, और ये जो लाइन ऑफ अटैक है, दिस इज द लिविंग ग्रुप, दिस इज द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल. इट लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing carbon along with other 3 substituents. ये ऐसे है Br and nucleophile, and ultimately an inverted product is there. अब देखिए जो पहला फैक्टर है जो SN2 को अफेक्ट करता है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ alkyl halides towards SN2. आप देखिए जब आपका SN2 हो रहा है तो क्या हो रहा है? आपका जो टेट्रावेलेंट कार्बन है वो किस में चेंज हो रहा है? पेंटावेलेंट कार्बन. ठीक है, तो इनिशियली यू हैव कार्बन एटम विच इज sp3 hybridized, but in case of transition state this carbon atom is sp2 hybridized and it is pentavalent. चाहे sp2 sp3 से स्टेबल है कार्बन, क्योंकि जो डिफरेंस जो एंगल क्रिएट होता है सब्स्टिट्यूएंट्स के बीच में वो ज्यादा होता है, लेकिन कार्बन की ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये क्या है? पेंटावेलेंट. और जितना R और R डबल डैश का बल्क बढ़ेगा, ठीक है, विद द इंक्रीज इन द हाइड्रोकार्बन बल्क ऑफ R एंड R डबल डैश, दिस ट्रांजिशन स्टेट वुड बिकम मोर एंड मोर अनस्टेबल बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स रिपल्शन. ठीक है, तो हम चाहेंगे कि अगर मैं इस R को और R डैश को सिंपल हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा? जो सब्स्टिट्यूएंट्स के बीच में रिपल्शन होगा वो मिनिमम होगा. ठीक है, एज यू कीप ऑन डिस्प्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग हाइड्रोजन और दिस हाइड्रोजन बाय alkyl groups, what would happen? This transition state would become more and more unstable. और ट्रांजिशन स्टेट अगर एनर्जेटिकली स्टेबल है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है, और अगर आपकी ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी है वो ज्यादा है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? मिथाइल हैलाइड ग्रेटर देन इथाइल हैलाइड ग्रेटर देन आइसोप्रोपाइल हैलाइड ग्रेटर देन tertiary butyl halide. Tertiary butyl halide. So this is the order of reactivity of alkyl halides. Why? Because
As you keep on replacing hydrogen with more and more bulky alkyl group, this pentavalent state, that is transition state, becomes increasingly unstable, or you say that the difference of energy between the reactant and transition state keeps on increasing, and thus rate of reaction कि अगर हाइड्रोजन ज्यादा से बल्कि बल्कि ग्रुप से आपने रिप्लेस किया तो उनमें क्या होगी, वंडर वाल फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होगी और ये गैप क्या हो जाएगा, बढ़ता है. सो मिथाइल हैलाइड, order of reactivity of alkyl halide towards SN2, methyl halide, this is primary alkyl halide, this is secondary alkyl halide, and this is tertiary alkyl halide. अब सेकंड देखिए, दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन. स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन. अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड है मिथाइल और यू रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, और मैंने इसके अंदर क्या डाला, NaOH डाला, एक्वस. यू नो हाइड्रोक्साइड आयन इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, वो ब्रोमाइड को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा. अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि, या पता है आपको कि SN2 में क्या होगा, हमेशा बैक साइड अटैक. क्यों बैक साइड अटैक होगा, क्योंकि ये जो हेलोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है इसका स्टीरिक बल्क ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल का भी स्टीरिक बल्क ज्यादा है. अगर ये फ्रंट साइड से अप्रोच करता है तो वंडर वाल फोर्सेस ऑफ रिपल्शन इन्वॉल्व होंगे, जिससे जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो अनस्टेबल बनेगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी. लेकिन हर काम नेचर ऐसा करता है जिससे, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है, कि जो आने वाला प्रोडक्ट है वो क्या बने, स्टेबल बने. ठीक है. दूसरा, दिस कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड इज polar. Bromine is more electronegative than carbon. It will attract the shared pair towards itself. So this factor also retards the access of nucleophile from the front side. क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज है और हेलोजन पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज. अब जब बैक साइड अटैक हुआ तो क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब, you have pulled the umbrella inside out. Inversion means you have untied the umbrella. ठीक है. अब देखिए, अगर अब आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो आपको क्या चाहिए, एल्काइल हैलाइड हमें ऐसा चाहिए कि उसमें कम से कम 1 काइरल सेंटर हो. जैसे मैं ये कंपाउंड लेता हूं, दिस इज 2-iodopentane, and I make a reaction with sodium iodide aqueous, and you have labeled iodine, isotopically labeled iodine. क्या होगा, SN2 होगा, ये बैक साइड अटैक होगा और आपको क्या मिल जाएगा, CH3CHI isotopically labeled CH2CH2CH. अब देखिए, आपको पता है यहां पे देखिए, ये जो कार्बन है ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, ये 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट से अटैच्ड है. एक क्या है, हाइड्रोजन, दूसरा क्या है, आयोडीन, तीसरा क्या है, मिथाइल, और चौथा क्या है, एन प्रोपाइल.
और आपको पता है एसिमेट्रिक कार्बन एटम अगर प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी से क्या मतलब है कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। ठीक है, अगर राइट साइड में करता है कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट मैंने इस सॉल्यूशन में डाला 2-आयोडोपेंटेन में, तो अगर राइट की साइड में प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को शिफ्ट करता है तो हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट में करता है तो हम क्या कहते हैं, लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन 2-आयोडोपेंटेन. It involves presence of 4 different substituents in the form of iodine, methyl, hydrogen and N-propyl. ठीक है, now in case you start with a dextrorotatory isomer, अगर डेक्स्ट्रो है और आपका आयोडीन आइसोटोपिकली लेबल्ड आयोडीन से क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, लीवो। लीवो मीन्स अगर ये राइट साइड में प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है तो ये जो आइसोमर इसका बन रहा है वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड में। अगर आपका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल डी है तो यहाँ क्या हो जाएगी, कैपिटल एल। यहाँ अगर आर है तो यहाँ क्या हो जाएगी, एस। वेयर कैपिटल एंड कैपिटल एल से कोई मतलब नहीं है डेक्स्ट्रोरोटेटरी का, दीज आर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड आर एंड एस आर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। R and S are absolute configuration. ठीक है, तो यहां आपको पता चल रहा है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। जो सब्स्टिट्यूएंट आउटसाइड द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड टुवर्ड्स यू था वो रिएक्शन के बाद SN2 अंडरगो करने के बाद आउटसाइड द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड अवे फ्रॉम यू चला गया है, और जो इनिशियली एल्काइल हैलाइड में अवे था वो किस में आ गया है, टुवर्ड्स यू। ठीक है, या आप कह सकते हैं आपका मॉलिक्यूल 180 डिग्री से क्या हो गया है, रोटेट हो गया है। अगर ये डेक्स्ट्रो तो लीवो, अगर ये लीवो तो ये डेक्स्ट्रो। ठीक है, यहां पता चल रहा है कि क्या हुआ है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर मेरे पास ये कंपाउंड होता कि मैं रिएक्शन इसके साथ किसके साथ करता, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करता तो यहां आइसोटोपिकली लेबल्ड आयोडीन की जगह क्या आता, OH। अब नहीं आप कह सकते, पहले ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम थे, सिर्फ आइसोटोपिक लेबलिंग का फर्क था। लेकिन अब ये 2-आयोडोपेंटेन है, ये 2 हाइड्रोक्सी क्या है, पेंटेन। क्या इनका कंपैरिजन हो सकता है? क्या आप कहेंगे कि ये डी है तो ये एल होगा? नहीं, ये डी है तो ये डी भी हो सकता है, ये कैपिटल डी है तो ये कैपिटल डी भी हो सकता है, ये कैपिटल आर है तो ये कैपिटल आर भी हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस अंडर SN2 हेड इन्वर्जन इज कॉन्फ़िगरेशन इज देयर। ठीक है, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट, इट डज नॉट मीन इट विल लीड टू a dextrorotatory to a levorotatory product or capital to D to capital L, capital R to capital S। अगर आप आइसोटोपिकली लेबल करते तब हो जाएगा, लेकिन अगर कंपाउंड डिफरेंट हो गया तो उसके बारे में आप नहीं बता सकते। वो कुछ भी हो सकता है, वो R है तो वो R भी हो सकता है, D है तो D भी हो सकता है, ये कैपिटल स्मॉल D है तो ये सभी स्मॉल D या स्मॉल L कुछ भी हो सकता है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। जो हमारा टेट्राहेड्रल कार्बन एटम है वो प्लेनर नहीं है, उसका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशंस में है, और ऐसे 3 डायमेंशन में है कि अगर ये कार्बन है आपके पास, 2 सब्स्टिट्यूएंट कैसे हैं, outside of the plane of blackboard, one is towards you, one is away from you, while 2 other substituents they are within the plane of paper। ये तो प्लेन ऑफ ब्लैकबोर्ड में है, ये टूवर्ड्स यू है एंड दिस इज अवे फ्रॉम। अब क्या होगा, इन्वर्जन का मतलब ये है जो अवे था प्रोडक्ट में वो टूवर्ड्स हो जाएगा, जो ये टूवर्ड्स था वो इन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, अवे फ्रॉम। अब तीसरा देखिए पैरामीटर स्टीरियोकेमिस्ट्री के अलावा, तो SN2 reactions proceed with inversion of configuration such that in case the reactant and product they are the same, then you can only say that small d is getting converted to small l, capital D is
getting converted to capital L. But in case reactant and products are quite different, you cannot assign that this is small d, this is small l, this may be small d, this is capital D, this may be capital D. ठीक है. अब थर्ड देखिए, थर्ड है फैक्टर है जो SN2 को अफेक्ट कर रहा है, वो है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल. नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल. अब बाय नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या मतलब है कि हमने ये कहा कि अगर बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन है तो उस केस के अंदर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा इट विल डिपेंड ऑन द एक्टिव मास ऑफ एल्काइल हैलाइड, आल्सो ऑन द stronger the nucleophile, higher would be the rate of reaction. Greater the concentration of nucleophile, higher would be the rate of reaction. ठीक है. अब देखिए, अब हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा रिलेटिवली कम स्ट्रॉन्ग है. उससे पहले आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिटवीन व्हाट आर what are bases and what are nucleophiles. अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियो कंसर्न्स विद पॉजिटिव चार्ज, फिलिक मीन्स अफिनिटी. वो सारे स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज के लिए अफिनिटी शो करते हैं, लव शो करते हैं, दे आर न्यूक्लियोफाइल. एंड यू नो ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, they are nucleophile. All neutral species containing lone pair of electron, they are nucleophile. ठीक है. Same is the case with bases. What are base? Lewis base क्या है? ठीक है. बेस क्या है? जो क्या होगा? हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा. बेस क्या है? ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है. बेस वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा. ठीक है. वो भी ज्यादातर क्या है? बेसिस नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं या न्यूट्रल स्पीसीज हैं विच कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्योंकि जो ये H+ है, ये भी तो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ये किसकी तरफ जाएगा? ऐसे कंपाउंड की तरफ जाएगा या तो वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता हो या उसके पास क्या हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो आई मीन टू से both bases and nucleophiles involve species which either contain negative charge or neutral species containing lone pair of electron. But in case of base, base क्या है? Which accepts hydrogen ion. अगर मैं ये बेस बना दूं तो मैं क्या कहूंगा? What is base? बेस क्या है? जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकेलाइज कर रहा है 1s0 ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन. आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है 1s शेल के अंदर. अगर मैं उसको रिमूव कर दूं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. आपके पास कौन सी शेल बन जाएगी? 1s0 एम्प्टी शेल. तो बेसिस की बेसिसिटी किस बात पे डिपेंड करती है कि बेस कितनी आसानी से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन आयन को डीलोकेलाइज करता है ताकि एक नया बॉन्ड बनता है बिटवीन बेस एंड हाइड्रोजन जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कौन कंट्रीब्यूट करता है? बेस. किसकी तरफ? शेड पेयर की तरफ. ठीक है. न्यूक्लियोफाइल हम कैसे डिफाइन करते हैं? न्यूक्लियोफाइल हम डिफाइन करते हैं कि tendency of a nucleophile to delocalize its electron density in the empty orbital of carbon. हाइड्रोजन नहीं, empty orbital of. और जहां empty orbital है कार्बन का वहां पे जो स्पीसीज होगी वो क्या होगी? कार्बोकेटाइन. न्यूक्लियोफाइल को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं? टेंडेंसी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? टेंडेंसी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल to delocalize its electron density in the valence shell of carbon. ठीक है. in the empty orbital of carbon. और बेस क्या है? empty orbital of hydrogen. दूसरा जो बेसिस की बेसिसिटी मेजर करते हैं वो एक थर्मोडायनेमिक व्यू है. और ये क्या है? जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ये एक काइनेटिक व्यू है. क्या मतलब? कि थर्मो, हमें काइनेटिक से मतलब नहीं है कि बेस
हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, कितनी रेट से कर रहा है, हमें ये है कितना बेस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब जहां थर्मोडायनेमिक व्यू आ गया वहां पे क्या मतलब है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आई हैव बी नेगेटिव प्लस एच प्लस एंड लाइक दिस इट इज बी एच। ठीक है, क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ठीक है। अब जितना के ज्यादा हुआ, हमें ये नहीं पता कि हम नहीं मान रहे कि काइनेटिक्स क्या है, कि वो 10 घंटे में रिएक्शन हो रहा है, 20 में हो रहा है, 30 में हो रहा है। हमें पता है हमारे पास दो बेसिस है, अगर मैं उन दोनों के दो दो मोल लूं तो एक के 1.5 मोल कन्वर्ट हो जाते हैं बीएच के अंदर, दूसरे के 1 मोल कन्वर्ट होते हैं बीएच के अंदर। तो जिसके 1.5 हुए हैं उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा, और क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा इसलिए वो सेट टू बी ए स्ट्रॉन्गर बेस देन अदर। तो जिस बेस की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। हो सकता है कि आपके दो बेसिस हैं कि एक ने कितना रिएक्शन दिया 1.5 मोल, दूसरे ने क्या दिया 1 मोल। हो सकता है 1 मोल वाला फास्ट ले रहा हो, वो 2 मिनट में हो रहा रिएक्शन, ये 10 घंटे में हो रहा हो, तब भी हम क्या कहेंगे, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा उसकी बेसिसिटी ज्यादा। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी में ये काम नहीं है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, काइनेटिकली डिटरमिन्ड है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, काइनेटिक व्यू है। इसका क्या है कि वट एवर बी द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वी आर नॉट कंसर्न विद इट, वी ओनली वांट टू नो हाउ fast a nucleophile delocalizes its electron density in the vacant orbital of carbon। अब मैं कहता हूं कि आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है CH3 नेगेटिव, एक क्या है OH नेगेटिव है, और मैं भी बता रहा हूं आपको कि CH3 नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी OH नेगेटिव से ज्यादा है, मिथाइल कार्बन आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी OH नेगेटिव से ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो CH3 नेगेटिव है वो बहुत तेजी से हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा। हो सकता है रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 हो और जो हाइड्रोक्साइड में है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 हो, लेकिन क्योंकि वो स्लो इन्वॉल्व कर रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, मिथाइल कार्ब एनायन की। तीसरा कि ये जो आपका बेसिस है, जो स्टीरिक इफेक्ट्स है वो यहां पे अप्लाई नहीं करते। क्यों, आप बेस का बल्क बढ़ाते जाओ, बेस को तो सिर्फ हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन देने हैं, हाइड्रोजन आयन का कोई बल्क ही नहीं है। स्टीरिक फैक्टर, ये जो स्टीरिक फैक्टर है, एक बार आपके पास नेक्ड बेस है, एक बार आपके पास हैवी बेस है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि उस बेस को तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक हाइड्रोजन आयन के अंदर ही डोनेट करनी है, डिलोकेलाइज करनी है। लेकिन यहां पे क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी के अंदर जितना स्टीरिक इफेक्ट बढ़ेगा, आगे करेंगे बात, उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, जितना स्टीरिक इफेक्ट बढ़ेगा उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी। सो I told you that both bases and nucleophiles, they are negatively charged species or neutral species containing lone pair of electron. A basicity of a substance is measured in terms how easily a base delocalizes its electron density in the vacant orbital of hydrogen. This is thermodynamically controlled. There is no steric effects involved with the bases. But here in case of nucleophilicity, where a nucleophile has to delocalize its electron density in the empty orbital of carbon, that is carbocation, this is a kinetically controlled reaction and steric effects are there. जितना steric nucleophile ज्यादा होगा, स्टेरिक बल्क जितना ज्यादा कैरी कर रहा होगा, उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखिए, अब देखिए, अगर आपके पास
डोनर एटम सेम है। अगर आपके पास डोनर एटम, वो एटम जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिलोकेलाइज कर रहा है, चाहे हाइड्रोजन के वेकेंट ऑर्बिटल में या कार्बन के वेकेंट ऑर्बिटल में, डोनर एटम सेम है, से यू हैव इथोक्साइड, then you say have phenooxide, then say you have acetate ion, ठीक है, then say you have benzoate anion. So this is ethoxide ion, this is phenoxide ion, this is acetate ion and this is benzoate. सब में डोनर एटम क्या है? ऑक्सीजन है। सब में डोनर एटम क्या है? ऑक्सीजन। तो जहां आप कंपैरिजन कर रहे हैं बेस और न्यूक्लियोफिलिसिटी में, आपके पास सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैं ताकि उनका डोनर एटम सेम है, तो उस केस के अंदर बेसिसिटी पैरेलल करेगी किसको? न्यूक्लियोफिलिसिटी को। जितनी बेसिसिटी ज्यादा उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी? ज्यादा। इन केस डोनर एटम इज द सेम, लाइक हेयर इन दिस केस इथोक्साइड हो, फिनोक्साइड हो, एसीटेट हो, बेंजोएट हो, सब में क्या है? सब में क्या है? सेम डोनर एटम है ऑक्सीजन। उस केस में जितनी बेसिसिटी ज्यादा उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर दिस स्ट्रॉन्गर देन दिस स्ट्रॉन्गर देन। अब क्वेश्चन अराइज होता है ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हम इसलिए कह रहे हैं कि ये क्या है, ये बेसिक कैरेक्टर और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या कर रही है? पैरेलल। इस सीरीज के अंदर बेसिसिटी भी इंक्रीज कर रही है और बेसिसिटी डिक्रीज कर रही है और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या कर रही है? डिक्रीज। कैसे? देखिए, आपको पता है इथाइल का क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई का क्या मतलब? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा? जहां पे वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है टुवर्ड्स हेटेरो एटम दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और प्लस आई इफेक्ट ऑफ इथाइल ग्रुप से कारण ये नेगेटिव चार्ज और ज्यादा कंसंट्रेट करेगा, और जितना चार्ज कंसंट्रेट करेगा उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी ज्यादा। Higher the concentration of negative charge on the donor atom, stronger would be the base and hence stronger would be the nucleoside. अब पहले मैं इन दोनों में कंपैरिजन करता हूं कि ये जो आपके पास इथोक्साइड आयन है ये स्ट्रोंगर बेस क्यों है फिनोक्साइड से? ये है आपके पास फिनोक्साइड आयन। You can write down following resonating structures. You can write down following resonating canonical structures of phenoxide. That mean क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज। डिस्पर्सल का क्या मतलब? कि अब ये चार्ज ऑक्सीजन नेगेटिव के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर रहा, रेदर पूरी रिंग के ऊपर भी क्या कर रहा है? कंसंट्रेट कर रहा है। क्योंकि डिस्पर्सल हो गया चार्ज का, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसकी बेसिसिटी कम हो गई। किससे? इथोक्साइड से। अब कंपैरिजन इन दोनों का करते हैं। इसमें क्या है? एसीटेट आयन। इसकी आप दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। सॉरी, यहां देखिए ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा था, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का नंबर भी ज्यादा था, लेकिन डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज में कौन सा आइटम ज्यादा इन्वॉल्व था? कार्बन। कार्बन कार्बन और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मॉडरेट है। लेकिन यहां क्या हुआ? देखिए यहां पे क्या हुआ, जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है? ऑक्सीजन। और कैनोनिकल स्ट्रक्चर में भी क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या है? ज्यादा स्टेबल है।
क्योंकि ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल विद हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ऑक्सीजन वांट्स टू रिमेन इन द विसिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये बेस में जो डिस्पर्सल होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड, जिसके कारण इसकी जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा डिस्पर्स करेगा कंपेयर टू फिनॉक्साइड। तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, with higher basic strength as well as nucleophilicity, same is the case में। ऐसे ही आप बेंजोएट एनायन का क्या कर सकते हैं कंपेयर, कि बेंजोएट एनायन के अंदर भी क्या है, ये देखिए ये बेंजोएट एनायन है, ये दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है। आप कहेंगे यहां भी दो थी, फिर ये ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि जो फिनाइल का है वो माइनस आई इफेक्ट होता है। ये जो C6H5 है पहले ही नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स कर रहा है और फिनाइल आयन नेगेटिव चार्ज को और कम कर रहा है बाय एग्जिबिटिंग माइनस आई इफेक्ट, इसलिए ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, एनायन स्टेबल हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये बेस सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसकी टेंडेंसी हाइड्रोजन के वेकेंट ऑर्बिटल या कार्बन के वेकेंट ऑर्बिटल में देने की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर आपके पास डोनर एटम सेम है तो उस केस में बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब देखिए, अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि डोनर एटम सेम नहीं है। एक है आपके पास CH3 नेगेटिव, एक है आपके पास NH2 नेगेटिव, एक है आपके पास OH नेगेटिव। एक क्या है, OH नेगेटिव। यहां पे नेगेटिव चार्ज कौन कैरी कर रहा है, कार्बन। यहां नेगेटिव चार्ज कौन कैरी कर रहा है, नाइट्रोजन। यहां नेगेटिव चार्ज कौन कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन। आपने फ्यूजेंस रूल के अंदर एक चीज पढ़ी है जिसका नाम है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या है, मेजर्स द टेंडेंसी ऑफ कैटायन, या इसको ऐसे लिखिए, टेंडेंसी ऑफ एनायन to delocalize its electron density in presence of a cation। उसकी जरूरत है भी या नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता, जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकेलाइज, एक होता है लोकेलाइज बिल्कुल पकड़ा हुआ, डीलोकेलाइज जो दूर तक जाएगा, दूर तक क्या होगा, अवेलेबल होगा। वो क्या है, जितना दूर तक ज्यादा अवेलेबल होगा उतना पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। जितना चार्ज ज्यादा होगा एनायन के ऊपर उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी। और पोलराइजेबिलिटी कब ज्यादा होगी, जब साइज क्या होगा, ज्यादा। तो मेरा मतलब ये है कि पोलराइजेबिलिटी आप किसके लिए डिफाइन करते हैं, एनायन के लिए। किसके लिए डिफाइन करते हैं, बेस के लिए। किसके लिए डिफाइन करते हैं, न्यूक्लियोफाइल के लिए, कि कितनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल या बेस या एनायन का डोनर एटम क्या हो करे, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डीलोकेलाइज करे। अब जितना चार्ज ज्यादा होगा, जितना चार्ज बढ़ता जा रहा है तो उसकी अवेलेबिलिटी के चांसेस क्या हैं, ज्यादा है, उसके डीलोकेलाइजेशन के चांसेस क्या है, ज्यादा। और जितना साइज बड़ा होगा डोनर एटम का, साइज बड़ा है इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है, और होल्ड कम है इसका मतलब लोकेलाइजेशन कम है, डीलोकेलाइजेशन ज्यादा है। तो पोलराइजेबिलिटी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, वन इज चार्ज, greater the charge higher would be the magnitude of polarizability, greater the size higher would be the value of polarizability। अब दोनों बातें देखिए, इनके ऊपर चार्ज तो सेम है, यूनी नेगेटिव, यूनी मीन सिंगल, लेकिन
एटॉमिक साइज क्या है? कार्बन का ज्यादा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का ज्यादा किससे? ऑक्सीजन से। आपको पता है कि जब आप पीरियड के अलोंग मूव करते हैं तो क्या होता है? साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि कार्बन का साइज ज्यादा है। ये फैक्टर सब में सेम है। कार्बन का साइज ज्यादा है, कार्बन की पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। और जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी? ज्यादा। higher the higher the value of polarizability of an ion, higher would be its nucleophilicity। ये ऑर्डर है। कार्बन का क्या है? सबसे ज्यादा पोलराइजेबल है, क्योंकि इन तीनों में साइज सबसे बड़ा है, फॉलोड बाय नाइट्रोजन, फॉलोड बाय ऑक्सीजन। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? अब आपको कहता है कि एक बार आपके पास वाटर है, एक बार आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है। वाटर में न्यूक्लियोफिलिसिटी कहां से राइज हो रही है? बाय वर्च्यू ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां भी क्या है? टू लोन कंजीनर है, ऑक्सीजन और सल्फर। तो आपको पता है सल्फर का साइज ज्यादा है, चार्ज दोनों पे बराबर है, ठीक है। सल्फर का साइज ज्यादा है, इसलिए इसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा है, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा है। सिमिलरली आप कंपेयर कर सकते हैं NH2 नेगेटिव, PH2 नेगेटिव, इसमें भी क्या होगा? फास्फोरस का साइज ज्यादा है, चार्ज सेम है, इसलिए क्या होगा? जो फास्फीन से फास्फाइड एनायन बना है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो, क्योंकि जितनी न्यूक्लियोफिलिसिटी, जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, जितनी आसानी से डीलोकेलाइज करेगा वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन या वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बन में, उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। और वो किस पे डिपेंड करती है? चार्ज पे। चार्ज ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, साइज बड़ा है तो भी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। अब देखिए, अब हमारे पास एक तरह से कुछ एनायंस ऐसे हैं, कुछ न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं एम्फीफाइल्स। एम्फीफाइल्स। ठीक है। जैसे एक आपके पास है साइनाइड आयन, या आप इसको लिख सकते हैं दिस, ठीक है। यहां डोनर एटम कार्बन भी हो सकता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, दिस इज साइनाइड, दिस इज आइसोसाइनाइड। इन साइनाइड नेगेटिव चार्ज इज कैरिड बाय कार्बन, इन आइसोसाइनाइड नेगेटिव चार्ज इज कैरिड बाय नाइट्रोजन, ठीक है। अब हमने देखा जहां SN2 मैकेनिज्म चल रहा है वहां पे हमने कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया से RX है, जब मैं इसको सोडियम साइनाइड से ट्रीट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? RCN प्लस NaX। अब वही मेरे पास कंपाउंड है, लेकिन इसको जब मैं सिल्वर साइनाइड से ट्रीट करता हूं तो मेरे को मिलता है एल्काइल आइसोसाइनाइड एंड Na। तो देयर आर एम्फीफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स विच ओ क्या है? विच ओ टू डोनर साइड्स इन ए मॉलिक्यूल। आपके पास क्या होगा, या आयन आपके पास क्या होगा? दो डोनर साइड, जैसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड। मेरे पास अल्काइल हैलाइड है, मैंने सोडियम साइनाइड से ट्रीट किया तो अल्काइल साइनाइड मिल रहा है। और यहाँ पे मुझे, जब मैं सिल्वर साइनाइड से ट्रीट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? अल्काइल आइसोसाइनाइड। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रिएक्शन के दौरान मैंने आपको आप SN जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो 2 या 3 तरह का है, मैं आगे बात करूंगा। SN2, SN1 एंड SNI। अगर आपके सिल्वर साइनाइड वाला केस है कि अल्काइल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आपके पास सिल्वर साइनाइड है तो ये जो सिल्वर है ये हैलाइड आयन के लिए बहुत ज्यादा अफिनिटी शो करता है, इतनी ज्यादा करता है कि ये क्या बना देता है? पहले R प्लस एंड AgX में भी क्लोरीन, ब्रोमीन हो रहा है।
आपने टेस्ट भी किया है, AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट्स आते हैं। अगर आपके पास इनऑर्गेनिक मिक्सचर है और आप उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट सोलुबल इन एक्सेस ऑफ अमोनिया AgCl के कारण, और अगर आपके पास पेल येलो प्रेसिपिटेट आते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड और ये सिल्वर आयोडाइड, कि इस सिल्वर आयन की अफिनिटी टेंडेंसी टू कैप्चर X नेगेटिव इतनी ज्यादा है कि आपके पास क्या बन गया, कैटायन, ये बिल्कुल टूट गया। ये यहाँ SN2 में नहीं टूटा था, वहां ट्रांजिशन स्टेट था। ट्रांजिशन स्टेट क्या था, पेंटावेलेंट था, जहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियस था, जहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन था। लेकिन यहाँ क्या बन गया, कैटायन। अब ये जो R प्लस है, ये जो R प्लस है, जो कार्बोकैटायन बन गया आपके पास, ये उस साइनाइड के साथ लिंक करेगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो। यहाँ पे देखिए 2 लोन पेयर नेगेटिव, यहाँ पे 1 लोन पेयर 1 नेगेटिव। ज्यादा नेगेटिव चार्ज कौन कंसंट्रेट कर रहा है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, क्या करेगा, ये वाला एनायन अटैक करेगा और आपको क्या मिल जाएगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड। इसका मतलब कि जहां पे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन मिलता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, वहां पे क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म। कि अगर आप सिल्वर साल्ट लेते हैं साइनाइड का, तो जो भी अल्काइल हैलाइड है वो क्या अंडरगो करेगा, SN1 करेगा। और SN1 में क्या बनता है हमेशा, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन किसके साथ आसानी से कंबाइन करेगा, उस डोनर साइड से जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो। यहाँ पे ज्यादा किसके पास है, नाइट्रोजन पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई सिल्वर नहीं है जो X के लिए, हेलोजन के लिए अफिनिटी शो करता हो, कोई यहाँ पे सिल्वर नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, बैक साइड अटैक होगा किसका, साइनाइड आयन का। और आपको पता है साइनाइड आयन में हाई पोलराइजेबिलिटी किसकी है, एक साइनाइड आयन है, एक आइसोसाइनाइड है। साइनाइड आयन में नेगेटिव चार्ज कार्बन कैरी कर रहा है, आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन चार्ज नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, नाइट्रोजन। मैंने अभी आपको बताया था कि कार्बन का साइज ज्यादा है, दोनों के ऊपर यूनी नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि कार्बन का साइज ज्यादा है इसलिए इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। इसलिए अब यहाँ पे कौन अटैक करेगा, साइनाइड अटैक करेगा। क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सा चल रहा है आपका, SN2। यहाँ पे आपके पास कोई सिल्वर नहीं है जो X को एक्सट्रैक्ट करके क्या बनाए, कार्बोकैटायन। यहाँ तो SN2 का प्रोसीजर चलेगा, ट्रांजिशन स्टेट चलेगी। इन दोनों में से स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रोंगर है क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज इज कैरिड बाय कार्बन whose value of polarizability is more than nitrogen as in the case of isocyanide। एक प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं, ऐसे ही एक बार नाइट्रो का देखना और एक बार नाइट्रीटो का देखना, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर, कि KNO2 है तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा एल्काइल हैलाइड के साथ, और अगर सिल्वर नाइट्राइट है तो आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। अब लास्ट फैक्टर है जो इफेक्ट कर रहा है वो है लीविंग ग्रुप। अब देखिए, आपको कोई भी SN2 कोई आपने एडिड न्यूक्लियोफाइल डाला और आप चाहते हैं कि कोई रिएक्शन हो, ये अल्काइल हैलाइड है, क्या होगा, जितनी आसानी से ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूटेगा, जितनी आसानी से कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूटेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि जितनी आसानी से ये टूटेगा उतनी आसानी से हाइड्रोक्साइड आयन या NH2 नेगेटिव आयन या फ्लोराइड आयन क्या करेगा, कार्बन ऑफ एल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक कर पाएगा। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो X है वो ऐसा होना चाहिए कि कार्बन X की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम। लिविंग ग्रुप कैसा, अभी तक बात कर रहे थे एंटरिंग न्यूक्लियोफाइल की, अब बात कर रहे हैं नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी कार्बन हैलोजन बॉन्ड की, उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा और रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। दूसरा यहाँ वही बात
जितना ज्यादा हैलोजन की पोलराइजेबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, उतना SN2 का रेट भी क्या होगा, ज्यादा। और मैंने आपको भी बताया पोलराइजेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे और साइज पे। जैसे ये RX है, दिस इज आयोडाइड आयन, दिस इज ब्रोमाइड, दिस इज क्लोराइड एंड दिस इज फ्लोराइड। ठीक है, सब पे यूनि नेगेटिव चार्ज है, लेकिन आयोडीन का साइज, आयोडाइड में आयोडीन का साइज मैक्सिमम है, ये आसानी से पोलराइजेबल है, ये आसानी से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डीलोकेलाइज कर सकता है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस का होल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम है। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा पोलराइजेबिलिटी का, आयोडाइड ग्रेटर देन ब्रोमाइड ग्रेटर देन क्लोराइड ग्रेटर देन फ्लोराइड, एंड सेम इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, सेम इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। कई बार आपको कहता है, क्वेश्चन आता है कि आपके पास RBr है और आपने उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, एक बार आपके पास RBr है, हाइड्रोक्साइड भी है, और प्लस आपने उसके अंदर NaI डाल दिया, तो इस सेकंड इक्वेशन का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। क्यों, क्या होगा, पहले ये जो NaI है ये RBr को किस में कर देगा, Ri में तब्दील। अब क्योंकि ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, क्योंकि इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, तो ये क्या बना देगा, हाइड्रोक्साइड में रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देगा, तेज कर देगा, क्योंकि ये आसानी से निकलेगा, क्योंकि इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो आई मीन टू से, इन केस वन थिंग इज दैट यू स्टार्ट विद एल्काइल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ओनली, ठीक है, reaction occurs, you obtain alcohol. In the second case, again you have alkyl bromide, but with hydroxide ion you also introduce sodium iodide. सोडियम आयोडाइड क्या पहला रिएक्शन क्या होगा, ब्रोमाइड आयोडाइड को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, और ये सारा ब्रोमाइड किस में हो जाएगा, आयोडाइड में। अब आयोडाइड ब्रोमाइड से अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए अल्कोहल का फॉर्मेशन का रेट क्या हो जाएगा, सेकंड केस के अंदर ज्यादा हो जाएगा। तो पहला किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, दूसरा पोलराइजेबिलिटी, और तीसरा देखिए कि जो लिविंग ग्रुप निकल रहा है, ये रिएक्शन हुआ, ये लिविंग ग्रुप जितना ज्यादा वीक बेस होगा, जितना ज्यादा वीक बेस होगा, जितना ज्यादा वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके वीक होने का क्या मतलब, बेस वीक है, मैंने अभी आपको बताया बेस वीक है या न्यूक्लियोफाइल वीक है, तो कौन से पैरामीटर डिटरमिन करें, एक तो पोलराइजेबिलिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब मैं ये कह रहा हूं जितना वीक बेस हो गया, वीक बेस का मतलब कि इस बेस ने, इस न्यूक्लियोफाइल ने अपना नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स कर दिया है, ये कंसंट्रेट नहीं कर रहा, ये क्या कर दिया है, डिस्पर्स, ठीक है, क्योंकि इसने अपना नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स कर दिया, इसकी टेंडेंसी टू रिकैप्चर, इसकी टेंडेंसी टू रिकैप्चर एल्काइल कार्बन क्या हो जाएगी, कम। अगर ये कंसंट्रेट करता तो हो सकता था ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो जाता, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता, लेकिन अगर वो लिविंग ग्रुप अच्छा है जो निकलने के बाद अपने चार्ज को आसानी से स्टेबलाइज कर दे, अपने नेगेटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज कब होगा, जब उसका क्या होगा, डिस्पर्सन होगा, ठीक है। यहां भी क्या होगा, क्यों कहा कि यहां पे अगर Ri होता तो ये I नेगेटिव निकलता, यहां Br होता तो ब्रोमाइड निकलता, यहां क्लोराइड X क्या होता, Cl होता तो क्लोराइड निकलता। आयोडाइड की पोलराइजेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। यहां देखिए तीनों पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन आयोडीन का साइज बड़ा है, इसलिए चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, कम, और चार्ज डेंसिटी कम हो गई, इसका मतलब डिस्पर्सल क्या हो गई, ज्यादा। इसका मतलब ये अच्छा लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू ब्रोमाइड, एज कंपेयर टू क्लोराइड। कि निकलने के बाद आपको 2-3 देता है, बार बार आता है ये क्वेश्चन कि आपको क्या कह रहा है
आपको कहेगा कि ये जो एनायन निकल रहा है, लिविंग ग्रुप निकल रहा है, 3-4 देगा, इनमें किसका रिएक्शन तेज होगा। तो आपने ये देखना है कि जो लिविंग ग्रुप एज एनायन जितनी आसानी से अपना चार्ज डिस्पर्स करेगा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। या दूसरे शब्दों में, ये जो एनायन है, ये जितना वीक बेस होगा, जितना वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, उतना SN2 का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, आयोडाइड ग्रेटर देन ब्रोमाइड ग्रेटर देन, कि अगर आयोडाइन निकलता X नेगेटिव तो ज़्यादा स्टेबल होता, इसके केस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता एज कंपेयर टू ब्रोमाइड, और ब्रोमाइड के केस से क्या होता, ठीक है। तो that's all with SN2. What are the factors affecting SN2? In the next lecture I will take details of SN1 mechanism and factors affecting SN1 mechanism. Thank you.